second chapter of the aptitude syllabus, that is chapter number first of your aptitude book. This is chapter first of your aptitude book, that is analogy. The name of the chapter is analogy. The previous chapter we have done of aptitude is the coding and decoding. I hope you have all practiced the questions of coding and decoding. Now let's discuss the new chapter, that is analogy. This is chapter first of your aptitude book, and your aptitude book is KYA, that is know your aptitude. As we know that in RPA 1 syllabus it is of 50 marks, and 10% aptitude will come in the examination. So 5 marks, you can say 5 questions of 1 marks each will come from the 5 different chapters of aptitude. So aptitude is equally important in order to score 100% of the marks in the exam. Now the next chapter is analogy. So let's see what is this word analogy means. Analogy means comparison between two things that shows the way in which they are similar. यहाँ पर दो चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वर्ड है कंपैरिजन. हमें बेसिकली क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसी भी दो चीज़ों के बीच में. कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज़ द वे इन विच दे आर सिमिलर. उनकी सिमिलैरिटी देखकर एक कंडीशन दी गई है यहाँ पे हमें, तो मतलब उनकी सिमिलैरिटी देखकर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है. एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए. If I write here Delhi, or you can say New Delhi, and here New Delhi, here India, New Delhi, this two dot symbol, you can say this symbol is say as the related symbol. For example, if New Delhi is related to India, then this symbol is termed as then here, then US will be related to. The basic example, if New Delhi is related to India, then US will be related to. Here what we are doing the comparison between the first condition and the second condition. Comparison between the first condition and the second condition. अब कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन सिमिलैरिटी भी देखनी है हमें. अब सिमिलैरिटी कैसे देख सकते हैं? हाउ न्यू दिल्ली इज रिलेटेड टू इंडिया. एज वी ऑल नो दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो अब यूएस की कैपिटल क्या होगी यहाँ पे हमारी? डैश इज द कैपिटल ऑफ यूएस. सिमिलरली हेयर यहाँ पर आपका डैश आएगा, देन दैट विल बी रिलेटेड टू यूएस. फॉर एग्जांपल द कैपिटल ऑफ यूएस इज न्यूयॉर्क. सी अगेन, न्यू दिल्ली is related to India, and in the same way New York is related to United States. So what basically we are doing here, we have taken the condition that the capital is there and we have compared them in the similar way. तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा है कि भाई न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, सेम हमें यहाँ पर यूज़ करनी है. सेम कंडीशन हमें यूज़ कर हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि जो न्यूयॉर्क है वो किसकी कैपिटल है? यूनाइटेड स्टेट्स की. वेरी इजी क्वेश्चन. एक सिंपल सा एग्जांपल और देखिए आप इसमें. इफ 2 is related to 4, then 3 will be related to. अब आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, 2 is related to 4. अब 2 4 से रिलेट कैसे हो सकता है? हमने 2 की मल्टीप्लाई किससे कराई है? 2 से कराई है. तब क्या है हमारा 4. सिमिलरली हम 3 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 2 से. क्या आएगा हमारा? 6. So if 2 is related to 4, then in the similar way you can say 3 is related to 6. So what we have seen here, we have seen the condition here, and then we have compared it with the similarity. Because 2 is related to 4 here, what the condition is that it is multiplied by 2. Similarly we will multiply this by 2 and we will get the answer 6. तो बेटा हमें क्या करना है एनालॉजी में बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है और उनकी जो कंडीशंस है उसके सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है. अब कैसे कर सकते हैं इसमें? हमारे एनालॉजी में हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आप एक बार बुक चेक करिए. बुक में देखिए, जैसे सबसे पहले हमारी टाइप आती है वर्ड्स की फॉर्म में आते हैं. देन जो हमारी सेकंड टाइम आती है वो भी वर्ड्स. जो हमारा थर्ड है वो लेटर्स, जो आपके अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हो लेटर्स की फॉर्म में आप एनालॉजी सॉल्व कर सकते हो.
उसके बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो आपके नंबर्स हैं उसकी फॉर्म में आप एनालॉजी क्वेश्चंस कर सकते हो। Then different codes are there, different codes are given to you, so there are various questions based on this chapter analogy। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एनालॉजी के कैसे होते हैं। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, पल्प इज रिलेटेड टू पेपर देन हेम्प विल बी रिलेटेड टू। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिस इज योर एप्टीट्यूड बुक, सी दिस बुक, नो योर एप्टीट्यूड, दिस इज फॉर द क्लास 8th एंड यही आपको एप्टीट्यूड की बुक है। इसी से आपके 10% हमेशा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ्स एग्जामिनेशन में। तो सबके पास आई होगी बुक आ गई होगी, सबके पास बुक सेट पहुंच चुके हैं। नाउ देखिए बेटा क्वेश्चन, पल्प इज रिलेटेड टू पेपर देन हेम्प विल बी रिलेटेड टू। अब देखिए पल्प इज द बेसिक रॉ मटेरियल दैट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। अब पेपर के लिए हमें क्या चाहिए, पल्प। पल्प एक हमारा रॉ मटेरियल है, तो हेम्प भी हमारा एक रॉ मटेरियल है। किसके लिए, क्या बनाने के लिए। सिमिलरली हेम्प इज यूज टू मेक रोप, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, रोप। जैसे पल्प, यहाँ पे कंडीशन थी पल्प से पेपर बनता है, तो हेम्प से क्या बनेगी, रोप बनेगी। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एनालॉजी। दोबारा देखिए, कब इज रिलेटेड टू टाइगर देन फॉन इज रिलेटेड टू। अब भाई देखो, कब इज रिलेटेड टू टाइगर, कब क्या होता है, कब बेसिकली इज द चाइल्ड ऑफ टाइगर। टाइगर के बच्चे को हम कब कहते हैं। तो सिमिलरली फॉन किसका बच्चा होता है, फॉन होता है हमारा स्टैग। फॉन इज द यंग वन, और यू कैन से द अपब्रिंगिंग ऑफ फॉन। सिमिलरली shoal is related to fish then swan is related to shoal। you can say shoal means it is considered as the group। जो फिशेस का ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, shoal। कभी भी हम ग्रुप ऑफ फिश नहीं बोलते, कभी भी हम ग्रुप ऑफ फिश नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, shoal ऑफ फिशेस। अगर आप कभी देख रहे हैं किसी रिवर या ओशन में बहुत सारे आपको फिशेस नज़र आ रही हैं, तो आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज सी द ग्रुप ऑफ फिशेस, यू हैव टू से द shoal ऑफ फिशेस मीन्स फिश, shoal मीन्स ग्रुप ऑफ फिशेस। सिमिलरली स्वान क्या होता है हमारा, ग्रुप ऑफ बी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मिरर इज रिफ्लेक्शन। अब मिरर से हमारा क्या होता है, आपने कंसेप्ट पढ़ा है साइंस में, लाइट कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली ये चीज़ सबको पता है कि मिरर से क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन होता है। और वाटर में कौन सा फिनोमेना होता है हमारा, रिफ्रैक्शन। वाटर में हमारा कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे स्नेक इज़ रिलेटेड टू रेप्टाइल। अब आपको पता है कि जो स्नेक आता है वो किस कैटेगरी में आता है, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। सिमिलरली वेल, वेल किस में आती है, मैमल्स में। वेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स एज वी ऑल नो दैट विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, दैट इज़ वेल, ब्लू वेल। ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। अब मैमल में क्या डिफरेंस होता है और रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आप साइंस टीचर से भी पूछ सकते हैं। और सबसे बेसिक एग्जांपल है, जो यंग वंस को बर्थ दे देते हैं वो मैमल्स होते हैं, और जो एग ले करते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस तरह देखिए अभी आगे क्वेश्चन, फ्रांस इज़ रिलेटेड टू यूरो। अब यहाँ से आपको क्या पता है, फ्रांस इज़ अ कंट्री एंड यूरो इज़ अ करेंसी। मतलब यूरो एक हमारी करेंसी है जो कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है। तो कनाडा में कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर। तो कनाडा में हमारी कौन सी करेंसी चलेगी बेटा, डॉलर चलेगी। इसी तरह आगे देखिए, रेड फोर्ट इज़ रिलेटेड टू इंडिया। मतलब इंडिया में क्या है, रेड फोर्ट। तो एफिल टावर का है हमारा, वेयर इज़ एफिल टावर, दैट इज़ इन फ्रांस। एफिल टावर का है हमारा बेटा, फ्रांस में हमारा क्या है, एफिल टावर है। ठीक है, अब और तरीके के क्वेश्चंस देखिए इसमें कैसे बनते हैं। ये देखिए वर्ड्स के देख लिए, अब हम लेटर्स पे देखते हैं कि लेटर्स पे हम किस तरह से क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा, Y इज़ रिलेटेड टू V, T इज़ रिलेटेड टू Q, P इज़ रिलेटेड टू M, देन K इज़ रिलेटेड टू। अब इनके बीच में रिलेशनशिप हमें देखनी है। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है, Y इज़ रिलेटेड टू V। Y की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है हमारी, 25, V इज़ 22, हेयर इट इज़ 20, हेयर इट इज़ 17, P इज़ 16, M इज़ 13। ये सब कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ये सब मैं बोल रहा हूँ हमने जो लास्ट वीडियो करी है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, उसमें आपने लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद करी होगी, मैंने आपको लिखवाई भी थी। तो आपको वो पता होनी चाहिए क्योंकि वो कभी भी किसी भी चैप्टर में यूज़ हो जाती है। दैट इज़ द बेसिक ऑफ एप्टीट्यूड कि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, 25, 22, 20, 17, 16, 13, मतलब 3 कम होता जा रहा है। सो K इज़ रिलेटेड टू, K 11 होता है, 11 में से 3 गया क्या आएगा बेटा, 8। और 8 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, दैट इज़ H। 8 पे हमारा कौन सा लेटर आता है बेटा, दैट इज़ H। तो हमारे कुछ लेटर्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे कुछ न्यूमरल वैल्यूज़ के क्वेश्चन हैं।
जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है। 230 रिलेटेड टू 461, 720 इज रिलेटेड टू 1441, सो 1005 विल बी रिलेटेड टू। यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहले क्या कंडीशन है हमारी, फिर उसी सिमिलर कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें अपना आंसर देना है। अब देखिए बेटा 230 इज रिलेटेड टू 461। अब 230 461 से कैसे रिलेट हो सकता है? सिमिलरली 720 1441 से कैसे रिलेट हो सकता है? तो हमें पहले एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इस पे क्या कंडीशन लगी हुई है, उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें अपना रिजल्ट देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 230 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो क्या आएगा हमारा 460, और 460 में क्या हो गया हमारा +1। सिमिलरली 720 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 1440 +1। तो हमारी क्या कंडीशन आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 देन +1, multiply by 2 then +1. Similarly 1005 multiplied 2, that is 2010, 2010 plus 1, that is 2011, that is 2011. तो बेटा these are certain questions that based on the topic analogy, ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे जो कि हमारे एनालॉजी पे बेस्ड हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की। ये वीडियो दोबारा देखना बार बार, जब आप ये 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए किसी भी रिलेशन की, वर्ड्स की हो, चाहे लेटर्स की हो, चाहे वो न्यूमरल्स की हो, और एनालॉजी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, वो कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इसमें क्या करते हैं हम, जो सिमिलर कंडीशंस होती है उसको यूज़ करते हुए अपने रिजल्ट तक हम पहुंचते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा एनालॉजी का। दिस इज़ द चैप्टर 1 ऑफ योर बुक नो योर एप्टीट्यूड। सो प्रैक्टिस दिस। बहुत जल्दी हम अपनी रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम एक बार अपने एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा एप्टीट्यूड को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 5 मार्क्स हैं। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं ये 5 मार्क्स, सबके 5 आउट ऑफ 5 आने चाहिए एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस में। सो डू प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एज वेल। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।